وعلیک یا رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم واجمل منک لم ترقت عینی واکمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ہزار بار بشو امتحن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بید بیست. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدی ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. اور سمجھ سکے نا وہ اسرار ایکم مثلی کم نظر ہے کسی دیدہ ور کی بات کرو. سبحان اللہ. بے شک. اور حجر کے روپ میں یاقوت کو نہ حجر کہو، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی بات کرو. اور خاموش رہوں اگر میں، یا رسول اللہ خاموش رہوں اگر میں تو تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اور ہمارے دین کی حقانیت حقانیت حقانیت، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. بے شک. سبحان اللہ. اور آئیے آج کی یہ محفل عالی جناب علی حسین انصاری اور عالی جناب محمد معین الدین انصاری صاحبان نے اپنے بچوں کی فراغت کے بعد رسم دستار بندی کے موقع پر منعقد کیا. بے شک. دعا کیجئے کہ پروردگار عالم اس محفل کو قبول فرما لے اور ان بچوں کی طرح ہر ایک مومن کے بچے کو اللہ حافظ اور عالم اور قاری بنا دے. بے شک. سبحان اللہ. آمین آمین آمین. شاعر کہتا ہے یہ علم دین یقیناً لا زوال خزانہ. بے شک. ہے یہ علم دین یقیناً لا زوال خزانہ. نہیں ہوگا علم دین تو روئے گا زمانہ. بے شک. سبحان اللہ. نہیں ہوگا علم دین تو روئے گا زمانہ. اور پوشاک پہ فخر کرنے والے سنائیں امجدی کا یہ پیغام کہ یہ جسم 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 یہ جسم سج سکتا ہے خوشنما لباسوں سے. بے شک. یہ جسم سج سکتا ہے خوشنما لباسوں سے، مگر زندگی سنورتی ہے علم و فن کے گوہر. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سنورتی ہے علم و فن کے گوہر سے. اور ہے آرزو یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. بے شک. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جلسہ ختم نہیں اب شروع ہو رہا ہے. جو سو رہے تھے وہ جگ گئے. بے شک. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے آمین. اور صبح قیامت تک سب کے چہروں کو ایسا ہی خوش رکھے. بے شک. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جسم سج سکتا ہے خوشنما لباسوں سے اور زندگی سنورتی ہے علم و فن کے گوہر سے. ہے آرزو یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر ایک پرچم سے ہاتھوں ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، ہر ایک پرچم سے بولو، ہر ایک پرچم
परचम से है आरज़ू यही कि तालीम कुरान हो जाए। और हाथों को लहरा के बोलो, हर एक परचम से, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक हर एक परचम से ऊंचा माशाअल्लाह। परचम इस्लाम हो जाए। आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उस पर रोशनी डालने से पहले बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजिम और जरूरी ये समझता हूँ कि सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, इमामुल मुत्तकीन, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, जिनकी शोहरत फर्श पर, जिनका परचम अर्श पर, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, उन्हीं की बारगाह अली जाह में बांदाज़े गुलामाना पेश कर ले दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादन अलजुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारका व ताला ने कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसका साफ ट्रांसलेशन ये है, सीधा तर्जमा ये है कि बेशक अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है, इसके अलावा कोई दीन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। तो पता ये चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था। हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर के आए थे वो मजहब इस्लाम था, मजहब इस्लाम था। लेकिन अल्लाह ने उसके लिए एक हद मुतय्यन कर दी थी, एक वक्त मुतय्यन कर दिया था, यहाँ तक कि उन पैगंबरों के लिए उनके लिए खित्ते मुतय्यन कर दिए थे। लेकिन जब भेजा है आखिर में आमना के लाल को, अब्दुल्ला के जिगर पारे को, अब्दुल मुत्तलिब के माह पारे को कहाँ भेजा है? मक्के के अंदर भेजा है। कहाँ भेजा है? हुदूद हरम के अंदर भेजा है। कहाँ भेजा है? संगलाख जमीन में भेजा है, उन पहाड़ियों में भेजा है जिनके भेजे भी पहाड़ की तरह थे। उन पहाड़ वाले भेजों के बीच में अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब को भेजा है। जो अपने महबूब को भेजा है, मेरे आका तशरीफ लाए हैं। तशरीफ लाने के बाद उन संगलाख जहनों को मोम बना दिया है, उन संग दिलों को मोम बना दिया है, उन संग जहन इंसानों को मोम बना दिया है और चारों तरफ भाईचारा कायम कर दिया है, चारों तरफ यकताई काम कायम कर दिया है, चारों तरफ मोहब्बत का दर्स दे दिया है, चारों तरफ अमन का पैगाम दे दिया है, चारों तरफ शांति का पैगाम दे दिया है। 1400 बरस पहले का मामला ये था, लोग दूसरों पर जुल्म करते थे, जुल्म करने के बाद फख्र करते थे। लोग शराब पीते थे, शराब पी करके फख्र करते थे। लोग जुआ खेलते थे, जुआ खेल करके फख्र करते थे। लोग जिना करते थे, जिना को अपनी बहादुरी का मामला समझते थे। लेकिन जब हादिए इंसुजा आ गए हैं, शमशुद्दुहा आ गए हैं, बदरुद्दुजा आ गए हैं, काफिल वरा आ गए हैं, मिसबाह जुल्म आ गए हैं, साहिबे काबा कौसैन व अदना आ गए हैं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। जुल्म को खत्म कर दिया गया है, बर्बरियत को कायम कर दिया गया है, इल्गार को मिटा दिया गया है, मोहब्बत को पैदा कर दिया गया है, दुश्मनी को मिटा दिया गया है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाला कुरान जब नाजिल होता है तो वो ये दर्स देता है कि इंसान दूसरे इंसान पर रहम करे, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ हुस्न सलूक करे। कहीं कुरान कहता है मोमिन मोमिन का ख्याल रखे, कहीं कुरान कहता
कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हुकूक को तलफ न करे, कहीं कुरान कहता है कि छोटा बड़े का अदब व एहतराम करे, बड़ा छोटे पर शफकत करे, कहीं कुरान कहता है कि माँ और बाप की अजमत को जानो, लेकिन तुम कब जानोगे माँ और बाप की अजमत को? जब अली हुसैन की तरह रहमत अली जैसा कारी पैदा करोगे, जब मोइनुद्दीन की तरह बेटा पैदा करके मेहताब नाम दे करके तुम कारी कुरान पैदा करोगे, तब ये कुरान पढ़ेंगे, जब ये कुरान पढ़ेंगे तो कुरान बताएगा कि माँ का एहतराम क्या है, बाप की अजमत क्या है, दोस्तों के हुकूक क्या है, रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, छोटे पर शफकत कैसे किया जाए, बड़ों के सामने कैसे पेश आया जाए, असातिज़ा का एहतराम कैसे किया जाए, पड़ोसी का ख्याल कैसे रखा जाए। और जब तुम कुरान से दूर रहोगे, तालीम कुरान से दूर रहोगे, तो मेरे प्यारे जैसे पैदा हुए थे वैसे पैदा होकर के दुनिया से चले जाओगे, खा करके चले जाओगे, कमा करके चले जाओगे। लेकिन अगर तुमको यकीनन जन्नत में जाने का शौक है तो तुम दीनदार बन जाओ, जहां पर मस्जिद के नमाजी बन जाओ, जहां पर तुम मस्जिद के नमाजी बन जाओ, जहां पर रमजान के रोजेदार बन जाओ, जहां पर माल होने पर ज़काती बन जाओ, वहीं पर अपनी औलादों को आलिम बना लो। जिसने अपनी औलाद को आलिम बना लिया, जिसने अपनी औलाद को कारी बना लिया, जिसने अपनी औलाद को फाजिल बना लिया, जिसने अपनी औलाद को मुफ्ती बना लिया, जिसने अपनी औलाद को कारी बना लिया, तो सुनो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारका व तआला कारियों के बाप को बुलाएगा, कारियों की माँ को बुलाएगा, हाफिजों के बाप को बुलाएगा, हाफिजों की माँ को बुलाएगा, उलमा के बाप को बुलाएगा, उलमा की माँ को बुलाएगा। और बुलाने के बाद मेरे आका फरमाते हैं उनके सरों पर एक एक ताज रख दिया जाएगा। वो ताज पहन करके मैदान महशर में जब वो लोग चलेंगे, वो मर्द औरत कौन, उलमा और हुफ्फाज और कुर्रा और मुफ्तियाने किराम के माँ और बाप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते पूछेंगे मालिको मौला ये कौन लोग हैं? रब फरमाएगा तुम पहचानो ये कौन लोग हैं। वो कहेंगे मालिको मौला क्या ये पैगंबर है? रब फरमाएगा नहीं। पूछेंगे मौला ये नबी है? रब फरमाएगा नहीं। पूछेंगे मालिको मौला ये वली थे? रब फरमाएगा नहीं। फिर पूछेंगे मालिको मौला ये आलिम दीन थे? रब फरमाएगा नहीं। वे ये कुरान थे? रब फरमाएगा नहीं। पूछते 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 इंतहा हो जाएगी। आखिरकार फरिश्ते पूछेंगे मालिको मौला ये कौन लोग हैं? तो रब्बुल जलाल फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने कमा करके अपने मुंह का निवाला छुड़ा करके अपने बच्चों को खिला करके और खर्च करके कारी कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, हाफिज़ कुरान बनाया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। मेरे प्यारे रिसालत रस्म जश्न दस्तार बंदी से ये पैगाम लेकर के जाओ कि तुम्हें अपने बच्चों को दीनदार बनाना है। कुछ लोगों की ये ज़हनियत बन चुकी है कि अगर हमने अपने बच्चे को मौलवी बना दिया, चंद टके की ये मजदूरी करेगा या बच्चों के तालीम और ताल्लुम में लग जाएगा, फिर क्या ये खाएगा, क्या बीवी को खिलाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? तो कसम खुदा की ईमानदारी से बता कर जाना। और जहां तक के मेरा ये मैसेज पहुंचे उनसे मेरा ये सवाल है, बताएं कोई मौलवी ऐसा हो जो भूखा सोता हो, कोई आलिम ऐसा हो जो भूखा सोता हो, कोई कारी ऐसा हो जो भूखा सोता हो? वो भी खाता है, तुम भी खाते हो, लेकिन वो सुकून की खाता है। तुम खाते हो तो डबल मेहनत करके, वो सिंगल मेहनत करता है। क्यों सिंगल मेहनत करता है? 5 वक्त की नमाज उसके साथ है, उसके काम को अल्लाह आसान कर देता है। कुरान की तिलावत को उसके साथ है, अल्लाह उसके काम को आसान कर देता है। तो मेरे प्यारे अपने बच्चों को कारी बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। और जब बना लोगे तुम्हारे दर्जे क़यामत में बुलंद हो जाएंगे। और आलिम बन गया तुम्हारा बच्चा, आलिम बनने के बाद शरीयत पर अमल कर लिया, तो सुनो तुम्हारे बच्चे को कौन सा मकाम मिलेगा मालूम है? वो मकाम मिलेगा कि रब्बुल जलाल फरमाएगा अरे आलिम साहब आइए, फरिश्ते के साथ हो जाइए। फरिश्ते के साथ वो आलिम साहब हो जाएंगे, मुफ्ती साहब हो जाएंगे। रब्बुल जलाल फरमाएगा अरे फरिश्ते ले जाओ, इसको जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दो। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दो।
क्या खड़ा कर दिया जाएगा। अब वो पूछेगा मालिक को मौला आप क्या करना है, क्या करना है। फिर रब फरमाएगा हाफिज को लेकर के आओ, हाफिज को लाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाएगा। रब जुल जलाल से पूछेगा हाफिज मौला मेरे लिए क्या हुक्म है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ऐ हाफिज तो कुरान पढ़ना शुरू कर और चलना शुरू कर। कहाँ? लालजी पुरवा में, लखीमपुर में, बहराइच में? नहीं नहीं, जन्नत में। जन्नत के दरवाजे से चलेगा हाफिज, कुरान की तिलावत करता हुआ चलता जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, यहाँ तक कि पूरा कुरान जब मुकम्मल हो जाएगा और वह नास पर नास की सीन पे पहुंचेगा, रब फरमाएगा ऐ फरिश्ते मेरे इस बंदे को रोक दे। रब फरमाएगा रोक दे। फरिश्ता कहेगा ऐ बंदे रुक जा, ऐ हाफिज कुरान रुक जा। हाफिज कुरान पूछेगा क्यों? फरिश्ता कहेगा रब का हुक्म है, यही तेरा ठिकाना है, यही तेरी मंजिल है, जन्नत में यही तेरा मकाम और मकान है, यही ठहर जा। वहीं पर वो ठहर जाएगा, उसको आला जन्नत दे दी जाएगी। मेरे प्यारे, अब आलिम को हुक्म होगा कि जो कुरान इसने पढ़ा है उसका तू तर्जुमा करता रहे और चलता रहे, तर्जुमा करता रहे, चलता रहे। अब आलिम तर्जुमा करता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जहां पर वह नास की सीन, वह नास का तर्जुमा खत्म होगा, वही रब फरमाएगा ऐ आलिम तू ठहर जा, यही तेरा मकाम है, यही तेरा मर्तबा है। ये मकाम और मर्तबा आलिम का होगा। और दूसरी हदीस शरीफ सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला कयामत के दिन हाफिज को बुलाएगा, बुलाने के बाद कहेगा ऐ हाफिज अपने खानदान में से ऐसे 7 लोगों को तलाश ले जिनके बाएं हाथ पर जहन्नम में जाने के लिए मोहर लगा दी गई हो, जहन्नम का फैसला हो गया हो। अब उनको निकाल करके लाएगा। वो जहन्नमी कहेंगे हाफिज साहब कहाँ पकड़ कर ले जा रहे हो? मैं तो जहन्नम में जा रहा हूँ, अब मोहर लग गई है, हाथ फेर दिया गया है, अब तो जहन्नम जाना ही जाना है। ये दुनिया नहीं है कि रिश्वत दे करके छुड़ा लोगे, ये दुनिया नहीं है कि पैसे मुआवजा करके छुड़ा लोगे, ये आखिरत है। हाफिज साहब कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? तो फरिश्ता कहेगा सुन चल रब ने बुलाया है। वो हाफिज कहेगा चल रब ने बुलाया है, रब ने कहा छांट करके लेके आओ, इसलिए मैंने छांटा है। अब वो छांट करके लेके आएगा कितने लोगों को? 7 लोगों को। रब फरमाएगा ऐ हाफिज तू इनकी शफाअत करो और जन्नत में लेके जाओ। क्या कहना है? बताए जरा हाफिज कयामत के दिन ऐसे 7 लोगों की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम में जाना मुतहक्कक और फैसल हो चुका होगा। फिर आलिम को हुक्म होगा, आलिम का मर्तबा ही कुछ और है, उसके दर्जात ही कुछ और है। रब फरमाएगा ऐ आलिम जा अपनी पुश्तों में पीछे और आगे 7 पुश्तों तक नजर डाल और जिन जिन लोगों पर जहन्नम वाजिब हो चुका है सबको ले ले और ले करके जन्नत में चल। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना अय्यूब रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत में लेके चला जा। अब आओ आगे मैं आपको बताऊं, जिनका बच्चा आलिम हो गया उनके दर्जात ये हो गए, और जो आलिम हो गया उसका दर्जा ये हो गया। जिसका बच्चा हाफिज हो गया उसका मर्तबा ये हो गया, और जो बच्चा हाफिज या कारी हो गया उसका मर्तबा ये हो गया। लेकिन न जाने कितने हमारे मोमिन भाई हैं जिनके दिलों में ये अरमान अंगड़ाई ले रहा होगा, काश मैंने हाफिज बनाया होता, काश मैंने आलिम बनाया होता तो मुझे ये शरफ मिल जाता, लेकिन नहीं बना सका। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कुरान ने कलाला कहा है, यानी कलाला उस मर्द और औरत को कहते हैं जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, बच्चे उसकी नस्ल से न पैदा हो, जिसको बांझ बोलते हो, उसे शरीयत कलाला कहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो क्या करें, किसको पढ़ा दे? तो आओ मोहम्मद अय्यूब रजा अमजदी तुम्हें फार्मूला लेकर दे करके जा रहा है। अगर तुमने इस पर अमल कर लिया, इसको अपना लिया, तो कयामत के दिन तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी छूटोगे नहीं, बल्कि तुम भी पकड़े जाओगे और पकड़ करके जन्नत में दाखिल किए जाओगे। दोज़ख में नहीं, पकड़ने के लफ्ज़ से डरिए मत। कैसे? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब मैदान महशर कायम होगा, कायम होने के बाद रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून,
اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، آج کے دن الگ ہو جاؤ، جہنمی جہنمیوں کے صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے، جنتی جنتیوں کے صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے، جنتیوں کو روک دیا جائے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک جہنمی گزرے گا، جا رہا ہوگا، جاتے جاتے رک جائے گا، پھر جنتی کو حکم ہوگا اے جنتی تو جنت میں جا کیوں کھڑا ہے، تیرا فیصلہ ہو گیا، تو جا جنت میں۔ اب اس میں ہوں گے مفتی شریف صاحب قبلہ امجدی، اب یہ چلیں گے جنت کی طرف اور چلیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، ایک منزل، دو منزل، تین منزل پار کریں گے، پھر تب تک کہ کیا دیکھیں گے، معین الدین صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اعمال ٹھیک نہیں تھے چونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا چونکہ یہ نماز کم پڑھتے ہیں، اور آج سنو میرے پیارے، معاملہ یہ ہوگا، یہ ہاتھ پکڑ لیں گے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے مفتی شریف صاحب جا رہے ہیں، معین الدین نے ہاتھ پکڑ لیا، مفتی صاحب نے جھٹکا چھوڑو ہاتھ، کہا نہیں چھوڑوں گا حضرت، کہا چھوڑو جانے دو، کہا نہیں چھوڑوں گا حضرت، تیسری بار پھر کہا چھوڑو ہاتھ، کہا نہیں چھوڑیں گے حضرت۔ تب یہ پوچھیں گے کیوں نہیں چھوڑو گے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تب وہ جہنمی کہے گا مولانا مفتی صاحب یاد نہیں ہے دنیا میں تم پیاسے تھے، تمہارے پاس پانی نہیں تھا، بے شک سبحان اللہ، میں نے کہیں سے لا کر کے تم کو پانی پلایا، بے شک اس پانی کا بدلہ چاہیے، اس کی جزا چاہیے۔ اب یہ کیا کریں گے، دنیا تو نہیں ہے کہ سفارش کر دیں، مگر پھر بھی کہیں گے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب سے اے مالک و مولا یہ وہ تیرا بندہ ہے جس نے دنیا میں مجھ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے، آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا سوچ کیا رہا ہے میرے بندے، اگر اس نے دنیا میں بھلائی کیا تھا اس کا بدلہ دے دے۔ کہیں گے مالک و مولا کیسے دے دو، میرے پاس تو کچھ پتا نہیں ہے، اگر پانی مانگے تو پانی بھی میرے پاس نہیں، وہ جنت میں ہے، اگر زر و ضمانت مانگے تو وہ بھی نہیں، جنت میں ہے، مالک و مولا کیسے بدلہ دے دو؟ رب فرمائے گا بدلہ یہ دے دے، ان کا ہاتھ پکڑ لو، لے جا جنت میں۔ سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ۔ پھر دوسرا جہنمی کھڑا ہوگا اور دوسرا جنتی گزرے گا، اور جانتے ہو کیا کہیں گے؟ ہم نے بتایا تھا نا کہ یہاں کچھ بھی بولو، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہوگی، عربی ہوگی، چاہے وہ سرکار غوث اعظم ہو، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، چاہے مفتی شریف ہو، چاہے مولانا تاول ہو، چاہے یہ طلبہ ہو، چاہے برکت علی ماسٹر ہو، چاہے معین الدین ہو، چاہے علی حسین ہو، چاہے حافظ ایوب ہو، چاہے وہ یوگی جی ہو، چاہے وہ مودی جی ہو، چاہے وہ اکھلیش ہو، چاہے ملائم ہو، مرنے کے بعد سب کی بھاشا چینج کر دی جائے گی اور سب کی زبان بدل دی جائے گی۔ وہ کون سی زبان ہوگی؟ عربی ہوگی، بے شک سبحان اللہ، عربی ہوگی۔ مرنے کے بعد سب کی زبان عربی، اور یہ عربی میں بولیں گے کیا؟ انا الذی شربت لک شربتن، تم نے پہچانا نہیں میں نے تم کو دنیا میں پانی پلایا تھا۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرا جنتی گزرے گا، اور جیسے گزرے گا فوراً دوسرا جہنمی ہاتھ پکڑ دے گا اور کہے گا کہ رکو، کہیں گے کیوں رکو، چھوڑو، کہے گا نہیں چھوڑیں گے، کہیں گے چھوڑو، تو جہنمی کہے گا نہیں چھوڑیں گے۔ جنتی جب کوشش کرے گا تو کہے گا تو نے پہچانا نہیں، کہے گا میں نے نہیں پہچانا، تو جانتے ہو کیا جواب دے گا؟ انا الذی اوتیت لک وضوءا، میں وہ انسان ہوں کہ تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، تمہارے پاس پانی نہیں تھا، میرے پاس پانی تھا، میں نے پانی دے کر کے تم کو وضو کرایا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت مفتی ایوب صاحب قبلہ، میں نے پانی دے کر کے تم کو وضو کرایا تھا۔ پھر وہی معاملہ مالک و مولا یہ بدلہ چاہتا ہے، کیا کروں؟ رب فرمائے گا سوچتے کیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ تو میرے پیارے اگر جنت
जन्नतियों के साथ तुम दुनिया में रहे हो, दुनिया में बदला दिया जाएगा, आखिरत में बदला दिया जाएगा, आखिरत में तुम्हारा कर्जा चुकाया जाएगा। तो मेरे प्यारे, अगर आलिम नहीं बन सके हो तो उलमा की खिदमत करने वाला बन जाओ, सुभान अल्लाह, अपने इमाम की ताज़ीम करने वाला बन जाओ, माशाअल्लाह, उलमा अहले सुन्नत की कदर मंजिलत करने वाला बन जाओ। हमारे और आपके इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद सैयदना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फतावा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी मोमिन ने आलिम की तौहीन किया तो उसने कुफ्र किया, कुफ्र किया, कुफ्र किया। उलमा की तौहीन कुफ्र है। और रब ने कुरान में क्या फरमाया? ऐ महबूब फरमा दो, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? और एक बात और सुनो, आप लोग जाहिल नहीं हो, आप लोग अनपढ़ हो। क्या हो? अनपढ़। जाहिल होने के लिए भी पढ़ा लिखा होना शर्त। सोच रहे होगे क्या कह दिया? जाहिल होने के लिए भी पढ़ा लिखा होना शर्त है। जिस वक्त हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के में ऐलाने नबूवत फरमाया, उस वक्त सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे। और उसी में था एक अम्र बिन हिशाम। क्या था? अम्र बिन हिशाम। उसको लोग कहते थे अबुल हकम, बहुत बड़ा फैसल, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा। लेकिन जब मेरे मुस्तफा ने नजर डाला तो कहा ये अबुल हकम नहीं, अबू जहल, अबू जहल है। तो पता ये चला कि जाहिल होने के लिए भी पढ़ा लिखा होना शर्त है। जो पढ़ा लिखा होगा वही जाहिल होगा। तो जिसको अबुल हकम कहते थे उसको मेरे मुस्तफा ने अबू जहल कह दिया। तो पूरी दुनिया में 254 से ज्यादा मुल्क हैं, सब उसको अबू जहल ही के नाम से जानते हैं, जबकि उसका असली नाम अम्र बिन हिशाम है। तो मेरे प्यारे, पढ़े लिखे ही जाहिल होते हैं। तो जाहिल होने के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। आप लोग अनपढ़ हो, पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, जियो और जीने दो। आज जिस कुरान को पढ़ करके रहमत अली कारी बन गए, जिस कुरान को पढ़ करके महताब कारी बन गए, उसी कुरान को पढ़ करके आप भी कारी बन सकते हैं, नाज़िरा खां बन सकते हैं, आलिम और हाफिज बन सकते हैं। आओ दिखाते हैं तुमको तारीख। मेरे मुस्तफ़ा से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इल्म दीन हासिल करने की उम्र क्या है? किस उम्र में पढ़ाई किया जाए? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर के जब तक के कब्र में ना पहुंच जाओ, इल्म हासिल करते रहो, इल्म हासिल करते रहो। यही वजह है जिस वक्त मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया 40 साल की उम्र में, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा और उनकी उम्र कितनी थी? 38 साल। 38 साल की उम्र में हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा, तलहा ने जवानी में कलमा पढ़ा, जुबैर ने जवानी में कलमा पढ़ा, सलमान फारसी ने जवानी में कलमा पढ़ा, बिलाल हबशी ने जवानी में कलमा पढ़ा, कुछ लोगों ने बुढ़ापे में कलमा पढ़ा। सबके सब वो हाफिज कुरान थे, सबके सब मुहद्दिस थे, सबके सब मुफस्सिर थे। उनके दिल में शौक और नई चीज जो होती है वो देर में हासिल होती है। उनके लिए दीन नया था, तुम्हारे लिए पुराना है। 1400 से भी ज्यादा साल, 1444 साल तो मेरे मुस्तफ़ा को हिजरत किए हुए हो गए, और 53 साल की उम्र में आपने हिजरत फरमाया था। मुस्तफ़ा की पैदाइश की तारीख को जोड़ा जाए तो 1497 साल से पहले बड़ी बेहयाइयां, बड़ी बुराइयां, बड़ा जुल्म, बड़ा सितम इस दुनिया के इंसानों पर किया जाता था। लेकिन जब कुरान आ गया, मेरे मुस्तफ़ा ने हर एक की अज़मत को समझा दिया, हर एक के वक़ार को बता दिया, हर एक के शियार को बता दिया।
हर एक के मर्तबे को बता दिया, लोगों ने समझ लिया और समझने के बाद उस पर अमल कर लिया। मैंने एक बार तखय्युलात में कुरान से पूछा, अरे कुरान ये बता, आज अगर कोई बात यहाँ होती है पूरी दुनिया में फैल जाती है, इसलिए कि सैटेलाइट का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, लेकिन अरे कुरान ये बता, जब तुम मक्के में नाजिल हो रहा था, जब तुम मदीने में नाजिल हो रहा था, जब तू सहबा में नाजिल हो रहा था, जब तू अम्मी आयशा के हुजरे में नाजिल हो रहा था, जब तू तबूक में नाजिल हो रहा था, जब तू बद्र में नाजिल हो रहा था, जब तू हुनैन में नाजिल हो रहा था, जब तू खंदक में नाजिल हो रहा था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था, प्रिंट मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था। ये बता तू नाजिल हुआ मक्के में, अमेरिका में कैसे पहुंच गया? ये बता नाजिल हुआ मक्के में, हिंदुस्तान में कैसे आ गया? ये बता तू नाजिल हुआ मक्के में और कतर में कैसे पहुंच गया? ये बता तू नाजिल हुआ मक्के में, सूडान में कैसे पहुंच गया? ये बता तू नाजिल हुआ मक्के में, सीरिया में कैसे पहुंच गया? ये बता तू नाजिल हुआ मदीने में, अल्जीरिया में कैसे पहुंच गया? ये बता तू नाजिल हुआ मक्का और मदीने में, मिस्र में कैसे पहुंच गया? ये बता तू नाजिल हुआ मक्का और मदीने में, शाम में कैसे पहुंच गया? ये बता तू नाजिल हुआ मक्का और मदीना में, अफ्रीका में कैसे पहुंच गया? ये बता कि नाजिल हुआ मक्का और मदीना में, चाइना में कैसे पहुंच गया? ये बता कि नाजिल हुआ तो मक्का और मदीना में, अफ्रीका में कैसे पहुंच गया? अमेरिका में कैसे पहुंच गया? इन मुख्तलिफ ममालिक में कैसे पहुंच गया? तो कुरान ने जवाब दिया कि अमजदी सुनो, अगर मीडिया का जमाना होता तो मीडिया वालों ने कतर बहुत कर दिया होता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना होता तो हाफ पैंट वाले ने कतर बहुत कर दिया होता, प्रिंट मीडिया का जमाना होता तो इन यहूदियों ने काट और छांट कर दिया होगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए नहीं फैला हूँ, मैं प्रिंट मीडिया के जरिए नहीं फैला हूँ, बल्कि मैं फैला हूँ हाफिज़े कुरान के जरिए। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है कि अल्लाह ने तौरात नाजिल फरमाई, ज़बूर नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई, सुहफ़ आदम नाजिल हुए, सुहफ़ इब्राहिम नाजिल हुए और दीगर पैगंबरों पर सहीफ़े नाजिल हुए, लेकिन वो मुकम्मल तौर से महफूज नहीं है, मुकम्मल तौर से वो असली हयात और शक्ल और सूरत में और असली इबारत के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान जैसे आया था वैसे ही मौजूद है, जैसे आया था वैसे ही रखा हुआ है। कुरान को अल्लाह ने जैसे नाजिल किया था वैसे रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान को नाजिल किया तो इरशाद फरमाया, ऐ महबूब सुनो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी उनके उम्मतियों पर थी, उस कौम पे थी, लेकिन वो हिफाजत ना कर सके, वो महफूज ना कर सके, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है, इसीलिए महफूज है। और कुरान ही नहीं बल्कि अमजदी की ज़बानी सुन लो, कुरान ही नहीं, दीन का एक एक मसला वैसे ही महफूज है, दीन का एक एक मरहला वैसे ही महफूज है। आपके यहाँ 1 साल पहले मजदूरी क्या थी और अब क्या है? 10 साल पहले क्या थी, अब क्या है? 10 साल पहले कपड़ा कितने रुपया मीटर मिलता था, अब कितने मीटर मिलता है? महंगा हो गया ना, मजदूरी बढ़ गई ना, चेंजिंग आ गई ना, बदलाव आ गया ना। आप जलसे का मामला ले लीजिए, आपने जलसा कराया उसका रोल अलग है, दूसरे ने जलसा कराया उसका रोल अलग है, तीसरे ने जलसा कराया उसका रोल अलग है। अब सियासत की दुनिया में ले लीजिए, एक मुख्यमंत्री बना, कहा ये योजना होगी, दूसरा मुख्यमंत्री बना, कहा योजना वही रहेगी, नाम बदला जाएगा और योजना में भी तब्दीली की जाएगी। एक मुख्यमंत्री बना, कहा 2000 रुपया महीना देंगे, दूसरा बना, कहा 2000 बंद 500 दिया जाएगा, तीसरा मुख्यमंत्री बना, कहा वो भी बंद से हजम कर लिया जाएगा। कानून बदला ना, लेकिन इस्लाम का सिस्टम, इस्लाम का कानून, इस्लाम का मियार, इस्लाम का महवर, इस्लाम का तेवर, इस्लाम का मामला, नो चेंजिंग, नो डेवलपमेंट, नहीं बदल सकता है। 1400 बरस पहले 5 वक्त की नमाज फर्ज थी, आज भी 5 वक्त की नमाज फर्ज है।
बोलो फर्ज है कि नहीं। 1400 बरस पहले ज़कात में माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% था, आज भी 2.5% है। 1400 साल पहले फितरे की रकम 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या 4 किलो 90 ग्राम खजूर थे, आज भी वही है, आज भी वही है। 1400 बरस पहले जिंदगी में साहिबे माल पर एक हज फर्ज था, आज भी एक ही हज फर्ज है। इसकी वजह क्या है कि इन सारे कानूनों को दुनियादारों ने बनाया। जब तक वो रहे कानून चलता रहा, ज़ाब्ता चलता रहा, जब वो चले गए उनके साथ कानून भी लपेट करके रख दिया गया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन इस कानून को उस रब्बे जुल जलाल ने बनाया जिसकी बदली नहीं हो सकती, उस रसूल ने बनाया है जिसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जिसकी बदली नहीं हो सकती है। उस रसूल और उस अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज किया था, आज भी फर्ज है। उस रसूल ने फर्ज करार दिया था 40वां हिस्सा माल का ज़कात में, आज भी वही फर्ज है। उस रसूल ने 2 किलो 45 ग्राम गेहूं रखे थे फितरे में, आज भी वही फर्ज है। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता है चला कि जब तक के मेरा रसूल रहेगा तब तक के कानून बाकी रहेगा। जिस दिन कानून बदल जाएगा उस दिन रसूल बदल जाएगा, लेकिन रसूल बदल नहीं सकता है तो कानून बदल। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुबह कयामत तक यही कानून रहेगा, यही कुरान का अदल फैसला और अहकामात रहेंगे मेरे प्यारे। तो तुम्हारा दीन दल बदलू नहीं है, तुम्हारा मजहब तब्दील होने वाला नहीं है, तुम्हारा मजहब इंटरफियर करने वाला नहीं है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं है। और मजहब इस्लाम ही सबसे पुराना मजहब। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसको हम यदि हर स्टेज पे हर मंच पे कहता है और कहता रहेगा और बताता है भी। कैसे? दुनिया में सबसे पहले कौन आया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कौन आया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले अम्मा कौन आई? हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हीं आदम और हव्वा से पूरी दुनिया के इंसानों की आबादी है। और आदम जब आए थे तो दीने खुदा लेकर के आए, बेशक सुभान दीने इलाही लेकर के आए थे। तो हम अपने बाप आदम के दीन पर, मजहब पर, धर्म पर हैं। हमारे बाप का ये धर्म है जिसको इस्लाम कहते हैं, हमारे बाप आदम का ये मजहब है जिसे हम इस्लाम कहते हैं। मामला ये हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने के बाद एक अरसा ऐसा गुजरा जिसमें कोई पैगंबर अल्लाह ने लोगों की रहनुमाई के लिए नहीं भेजा, तो वो कौम गुमराह हो गई। जिसकी समझ में जो आया वो समझ लिया और जो उसको ताकतवर लगा उसको अपना माबूद मान लिया। वहीं से ये खुराफातें फैल गई, वहीं से मामलात बिगड़ गए। फिर रब ने अपनी मशीयत के मुताबिक पैगंबरों को भेजा। वो आए, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, कभी ईसा अलैहिस्सलाम आए, कभी दाऊद अलैहिस्सलाम आए, कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, यहाँ तक कि कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों को भेजा अल्लाह ने, अवतारों को भेजा, अंतिम महर्षियों को भेजा, अपने मैसेंजरों को भेजा। वो आए और उन्होंने दीन इलाही का प्रचार किया। जिन्होंने हक समझा उन्होंने कबूल किया, जिनको गलत लगा वो अपनी जगह पे कायम और अटल रहे। बेशक इस तरह से दुनिया का माहौल चलते चलते यहाँ तक पहुंचा। और हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा अजीज वतन है, ऐसा प्यारा वतन है और इसके मामलात इतने प्यारे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो ऊंचा ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो ऊंचा ऊंचा
हमसाया आसमां का। फिर कहा था गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, बेशक गोदी में जिसकी खेलती हैं हजारों नदियां। तो बहुत लंबा तराना है डॉक्टर इकबाल ने कहा था हिंदुस्तान के लिए। और ये हिंदुस्तान के बारे में कहना ये चाहता था कि हमारा इतना प्यारा मुल्क है कि यहाँ हर बिरादरी हर फिरके को आजादाना तौर पे अपने धर्म के एतबार से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है ना। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। जब 1947 में देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ, उसके बाद 1948 में 26 जनवरी को यही कानून पास हुआ था कि हर धर्म वाले को अपने धर्म के एतबार से जिंदगी गुजारने का हक हासिल होगा। हिंदू भाइयों को मंदिर बनाकर पूजा करने का हक हासिल होगा, मुसलमान भाइयों को मस्जिद बना करके उसमें नमाज पढ़ने का हक हासिल होगा, अपने मदरसों में दीनी तालीम लेने देने का हक हासिल होगा, स्कूलों में स्कूलों के हिसाब से तालीम होने का हक हासिल होगा, ईसाइयों को ईसाई मजहब के एतबार से, यहूदियों को यहूदी के एतबार से। यानी हमारा ये आज़ाद मुल्क है और हम सबको अपने एतबार से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। लेकिन चोरी करने का हक न हमारा कानून देता है न हमारी शरीयत देती है। झूठ बोलने का हक न हमारा कानून देता है न हमारी शरीयत देती है। दूसरों पर जुल्म करने का हक न हमारा कानून देता है न हमारी शरीयत देती है। लिहाजा अपने अपने एतबार से अपनी अपनी जिंदगी को दीन की राह पर लाकर डालो और दीनी एतबार से गुजारो। मेरी जहन में एक सवाल गूंज रहा, वो ये कि जब एक बीमारी आई जिसको कोरोना कहा जाता है, और कोरोना में लोगों की जान की सुरक्षा के लिए पाबंदी लगाई गई कि दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। और मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां जाओगे तो जब सब बना के नमाज पढ़ोगे तो एक दूसरे से मिल करना, बीमारी बढ़ने का अंदेशा था तो पाबंदी लगा दी गई कि 2, 4, 5 लोग मस्जिद में दूर दूर करके नमाज पढ़ें, बाकी अपने घरों में नमाज पढ़ें। नमाज से किसी ने नहीं रोका। तो उस वक्त हर मुसलमान कहता था कि हम मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, कि हम मस्जिद में नहीं पढ़ सकते हैं, क्या तुम ही पढ़ सकते हो? लेकिन जब कोरोना चला गया, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए और मुअज्जिन ने कहना शुरू किया, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तुम्हारी नमाज बेहतर है तुम्हारी नींद से। तब मुसलमान खर्राटे मार के सोता, मस्जिद नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा जब मस्जिद दरवाजा खुला तो मस्जिद नहीं जाएगा। अरे मस्जिदों को आबाद करो। जो कौम अपने इबादत खाने को आबाद करती है वो आबाद रहती है, और जो कौम अपने इबादत खाने को वीरान करती है वो बर्बाद हो जाती है। एक वक्त था जब अब्दुल अजीज और उनकी अहलिया और उनके बेटे 3 लोगों का इंतकाल यहाँ बारगी हुआ था। पूरा इलाका दहशत में था और पूरा गांव नमाजी बन गया था। कसम खुदा की 1.5-2 महीने लोगों ने नमाज पढ़ा था, मगर गांव में रौनक आ गई थी, गांव में बरकत आ गई थी, गांव में राहत आ गई थी और हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना गुजरता गया उनका गम दूर होता गया, दर्द भूलते गए, एहसास मरता गया, फिर सबके सब बेनमाजी हो गए, फिर सबके सब बेनमाजी हो गए। तो मेरे प्यारे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दीन की बातों पर अमल करो। अब रमजान आ रहा है, बहुत से लोग इस जुगाड़ में होंगे कि तबीयत हमारी नहीं सही है तो हम दवा ले लें, तबीयत सही हो जाए ताकि रोजा रखें। और बहुत से लोग इस जुगाड़ में घूम रहे हैं कि जैसे रमजान की तारीख शुरू हो हम मुंह बना लें और 2 खुराक दवा जेब में रख लें, कोई पूछे तो कहते हैं बीमार बीमार। तो मेरे प्यारे, झूठ मूठ की बीमारी ना बनाओ।